Hello students, today I am there with another topic of chapter 7, the Vijayanagara Empire, that is Apogee and decline of empire. Apogee means the peak of success, ki how Vijayanagara reached to peak of success and then how it declined. So both the journeys we are going to now see in this topic. Within the polity means within the politics. क्लेमेंट्स टू पावर को क्लेम करने वालों में सबसे पहले थे members of the ruling lineage, that is ruling dynasties, as well as military commanders. So these were the two people, those who were claiming the power, those who wanted, मतलब अपना हक जताना चाहते थे पावर पर. Fine. So first dynasty known as संगम dynasty, संगमा dynasty which it is called, एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485. जो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने रूल किया विजयनगर के ऊपर, दैट वाज संगम डायनेस्टी, जिसमें से हरिहरा एंड बुक्का वाज द रूलर्स ऑफ दैट संगम डायनेस्टी. दे एक्सरसाइज देयर कंट्रोल टिल 1485. दे वर सप्लीमेंटेड बाय द सालुवा. सप्लीमेंटेड मीन आफ्टर दैट देयर सक्सेसर्स वर, successor we can't say that, some other rulers, those who captured this empire, that was Saluwas. Saluwas were the military commanders, those who captured power by their military strength, who remained in power till 1503. And when they were replaced by the Tulwas में the king was Krishna Dev Rai, who was the very popular and very famous and very generous king of Tulwa dynasty, who ruled over Vijayanagar Empire for a longer period of time. And Krishna Dev Rai's rule was characterized by expansion and consolidation. Expansion means he expanded more, consolidated means उसको और ज़्यादा strong और मजबूत बनाना, ज़्यादा बढ़ाया भी और उसको एक मजबूत भी बनाया. दिस वॉज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर्स was acquired. The rulers of Orissa were subdued and severe defeats were inflicted on the Sultan of Bijapur. So they said this was the time when the land between Tungbhadra and Krishna rivers, that is Raichur Doab जिसको कहते हैं, was acquired. The rulers of Orissa were subdued. जो rulers मतलब उसको भी इन्होंने जीत लिया. और किसको हराकर? रूलर्स ऑफ उड़ीसा. सबड्यूड मीन्स किसी को हराकर उस पर कब्जा करना. एंड इवन सीवियर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड. और इवन उन्होंने किसको डिफीट दी और ज़्यादा बहुत बुरी तरह से हराया? सुल्तान्स ऑफ बीजापुर. बीजापुर इज आल्सो इन आंध्र प्रदेश, sorry, in Karnataka. So although the kingdoms remained in a constant state of military preparedness, because always Krishna Dev Rai's kingdom was prepared for war and military उसकी हमेशा प्रिपेयर रहती थी. It flourished under conditions of unparalleled peace and prosperity. So that is why always in his kingdom there was peace and prosperity. Krishna Dev Rai is credited with building some fine temples and adding impressive gopurams to many important South Indian temples. And he was also got a credit. Credit is also going to him for the very fine temples and even a very impressive that structure of the temple, architecture of the temple, that is gopuram, जो उसके ऊपर का टावर होता है. फाइन. सो गोपुरम को बनाने का भी क्रेडिट जो है वो इन्हीं को जाता है. गोपुरम होता है बेटे गेट के ऊपर का अ लार्ज पिरामिडिकल टावर ओवर द एंट्रेंस गेट ऑफ द टेम्पल. फाइन. इट्स अ लार्ज pyramidal tower over entrance gate of the temple. So this credit also goes to him for the gopuram also. He also founded a suburban township. Suburban means which is urban in type. So that type of township near town he has also founded. Founded means he also set up near Vijayanagar, that is called Nagalapuram after his mother. फाइन. अपनी मदर के नेम से उसने उसका नाम रखा था. एंड सम ऑफ द मोस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम और जस्ट आफ्टर आल्सो. और उसके टाइम की और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शंस है विजयनगर के बारे में वो उसके टाइम की और उसके बाद के टाइम की भी हमें देखने के लिए मिलती हैं. एंड स्ट्रेन बिगेन टू शो. स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस कब स्टार्ट हुआ? विद इन द इम्पीरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्ण देव राय's डेथ. जब कृष्ण देव राय जो है उनकी डेथ हो गई इन 1529. देन आफ्टर his सक्सेसर्स वर ट्रबल्ड बाय द रिबेलियस नायकाज और मिलिट्री चीफ्स. उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे, इसके अपने जो बेटे या उसके आगे उनके बेटे, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड दे वर नॉट दैट ब्रेव. वी कैन नॉट से दैट पावरफुल दे वर. सो दैट इज़ वाई दे वर ट्रबल्ड बाय द रिबेलियस. उनके अपने ही मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री चीफ जिनको नायकाज कहते थे, उन्होंने उनके साथ रिबेल करके विजयनगर एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया. एंड बाय 1542 कंट्रोल एट द सेंटर हैड शिफ्टेड टू अनदर रूलिंग लीनियर. और 1542 में फिर से जो विजयनगर एम्पायर का जो रूलिंग लीनियर्स थी वो किसी रूल जो था वो किसी और रूलिंग डायनेस्टी के पास चला गया. दैट वाज कॉल्ड एराविडू विच रीनेम्ड
रिमेन्ड इन पावर टिल एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, जो एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक वो पावर में रहे और उन्होंने रूल किया विजयनगर को. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एज इंडीड earlier, the military ambitions of the rulers of Vijayanagar as well as those of the Deccan Sultanates resulted in shifting alignments. Eventually this led to an alliance of the sultans against Vijayanagar. So अब उन लोगों ये this was the time when the Vijayanagar was very strong also, but still they said that कि the sultanates they alliance means they grouped together, they collected themselves together, सारे सुल्तान आपस में इकट्ठे हुए डेक्कन के, and they wanted to then अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट वो इकट्ठे हुए, किसके अगेंस्ट वो रिबेल करना चाहते थे, विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट. एंड इवेंचुअली दिस लेड टू एन अलायंस ऑफ द सुल्तानेट्स अगेंस्ट विजयनगर. और इतना ज़्यादा ये डेक्कन जो इनका मिलिट्री जो थी एम्बिशन थी इन रूलर्स की विजयनगर एम्पायर की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डेक्कन के जितने सुल्तान थे सबको कलेक्ट होना पड़ा आपस में इसके अगेंस्ट अटैक करने के लिए. फाइन. सो इन 1565 रामा राय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर लेड द आर्मी इन टू बैटल एट रक्षाशी तंगड़ी, दैट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस जिसको आज तालीकोटा कहते हैं, वेयर हिज फोर्सेज वर रूटेड बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर. यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की जो फोर्सेस थी, मिलिट्री थी, उनको किसका सामना करना पड़ा, कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर ऑफ द सुल्तान्स, दैट इज़ विद बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा. ये तीन ऐसे थे जहाँ पे सुल्तान्स रूल कर रहे थे. इन तीनों के सुल्तान्स ने तीनों ने मिलकर देन दे अटैक्ड ऑन Vijayanagar, and victorious army sacked the city of Vijayanagar. Definitely they were three and their power was more stronger they were than this Vijayanagar empire as they all get together. So who won this war? These all three sultans. And when they won, then they plundered. Sacked means they plundered, looted, loot lena, the city of Vijayanagar, and the city was totally abandoned within few years. और आगे के few years में वो city बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी. नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट. अब फोकस जो था एम्पायर का वो किस तरफ को हो गया, ईस्ट की तरफ. वाई ईस्ट की तरफ? बिकॉज देयर द अदर लिनिएज दैट इज़ अराविडू डायनेस्टी. अराविडू डायनेस्टी जो थी वो वहाँ पर रूल कर रही थी. सो अब इनका जो फोकस था सुल्तान्स का अब हो गया उस तरफ जहाँ पे अराविडू डायनेस्टी जो थी वो विजयनगर एम्पायर में रूल कर रही थी. डायनेस्टी रूल फ्रॉम पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति. ये जगह पर जहाँ पर ये रूल कर रहे थे अब उनका जो फोकस था उस पार्ट की तरफ हो गया. एंड ऑल्दो द आर्मीज ऑफ सुल्तान्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर, रिलेशंस बिटवीन द सुल्तान एंड द रायाज वर नॉट ऑलवेज और इनएविटेबली हॉस्टाइल. दे सेड कि चाहे ये आर्मी जो है वो सुल्तान की दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी, वो रिस्पॉन्सिबल थे सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट रिलेशंस बिटवीन द सुल्तान और जो ये किंग्स थे यहाँ के जो रूलर्स थे इस विजयनगर के, इट वॉज नॉट ऑलवेज हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब इनके रिलेशन जो थे वो दुश्मनों वाले नहीं थे. इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, जबकि उनके रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे, दे वर हिंदूज एंड द सुल्तान्स वर द मुस्लिम्स, बट स्टिल देयर रिलेशंस वर नॉट दैट हॉस्टाइल, मतलब उतने ज़्यादा बुरे और दुश्मनी वाले नहीं थे. Krishnadev Rai, for example, supported some claimant to power in the Sultanate and took pride in the title establishers of the Yavana kingdom. और उन्होंने कई ऐसे सुल्तानों के जो इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिनको उन्होंने अपने पावर में उनको हिस्सेदारी दी, अपनी पावर में उनको मतलब अपनी एम्पायर में उनको अच्छी पोस्ट दी, और इवन कई उनको तो उन्होंने टाइटल भी दिया है एस्टैब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम. मे बी यमुना साइड में उन्होंने उनको किंगडम का सारा भार संभाला होगा, काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का. दैट इज़ वाई ही हैज़ आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ यवना डायनेस्टी. And this establisher of the Yamna kingdom. Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession disputes in Vijayanagar following the death of Krishnadev Rai. जब कृष्णदेव राय की डेथ होगी तो तब इनकी जो किंगडम थी, there was the dispute between his successors for taking the succession. So that dispute was also solved by the Sultan of Bijapur. So this shows that ki the relations of these Vijayanagar empire's rulers was not that bad with the sultans. In fact, the Vijayanagar kings were keen to ensure the stability of the sultanates and vice versa. और कई बार ऐसे होता था कि ये जो विजयनगर के रूलर्स थे, they wanted that कि the सुल्तानों का जो रूल है वो स्टेबल रहे. स्टेबल मीन्स एक जैसा रहे, मतलब दे शुड बी. और कई ऐसे हुए हैं विजयनगर के किंग्स, दोज हु वांटेड टू रिमूव देम and to defeat them.
It was the adventurous policy of Rama Raya, who tried to play off one sultan against another, that led the sultans to combine together and decisively defeat him. पर कहते ये पॉलिसी उनकी चली नहीं, क्योंकि एक जो कृष्णदेव राय के बाद जो उनके सक्सेसर हुए हैं रामा राया, उन्होंने क्या किया कि एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाने की कोशिश की, और इस कोशिश का रिजल्ट उल्टा हो गया. उसकी वजह से क्या हुआ कि दीज ऑल सुल्तान्स दे गेट टुगेदर, they collected together, combined together themselves, and then they defeat Ramaraya also. So this way these relations अच्छे भी थे, और कई रूलर्स के साथ ये रिलेशन जो थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं भी थे. So now we will see that the next topic, that is the Rayas and the Nayakas. Among those who exercise power in the empire were military chiefs, जिनको कहते हैं Nayakas, who usually controlled forts and had armed supports also. उनका क्या काम था? दे वर मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर कंट्रोल्ड फोर्ट्स, किले को कंट्रोल कर लेना, एंड हैड आर्म्ड सपोर्ट्स आल्सो. डेफिनेटली वो कैसे कंट्रोल करते थे इन फोर्ट्स को, किले के ऊपर कैसे कंट्रोल करते थे? विद देयर आर्म फोर्सेस, बिकॉज दे वर द कमांडर, एंड डेफिनेटली मिलिट्री चीफ का ही सुनेगी ना मिलिट्री. सो दैट इज़ वाई दे वर सपोर्टिंग द armed supports also. So these chiefs often moved from one area to another, and in many cases were accompanied by peasants looking for fertile land on which to settle. ये chief जो होते थे, they always move from one place to another place, और कई बार कई cases में ऐसे होता था कि इनके साथ जो ये मिलिट्री चीफ्स थे, इनके साथ पीजेंट्स भी मूव करते थे. पीजेंट्स क्यों मूव करते थे? इन सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड, so that they can settle down on that place and they can cultivate the land and they can earn their livelihood. These chiefs were known as Nayakas, and they usually spoke Telugu or Kannada language, because इनका जो एरिया था वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में ही मूवमेंट का था. So that is why as in Karnataka you know that Kannada is spoken, and in आंध्र प्रदेश तेलुगु इज स्पोकन. सो मैनी नायकाज सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स ऑफ द विजयनगर. काफ़ी सारे ऐसे नायकाज हुए हैं जिन्होंने इनकी अथॉरिटी को, किंग्स की अथॉरिटीज़ को, विजयनगर की अथॉरिटीज़ को माना भी है, एंड दे ऑफन रिबेल्ड ऑल्सो. कईयों ने उनके अंडर काम करना मंजूर किया, उनकी सुप्रमसी को मानकर उनके अंडर वो काम करते रहे हैं ये मिलिट्री चीफ्स, ये नायकाज जिनको हम मिलिट्री चीफ्स कहते हैं. और कई ऐसे भी हुए हैं नायकाज दोज हू रिबेल्ड, एंड दैट हैड टू बी सबड्यूड बाय द मिलिट्री एक्शन. और जब वो रिबेल करते थे तो उसको कैसे डिफीट करते थे ये किंग्स? विद द मिलिट्री एक्शन. फिर किंग अपनी मिलिट्री का यूज़ करता था इनको सबड्यू करने के लिए, मतलब इनको हराने के लिए. द अमारा नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन. अमारा नायका एक सिस्टम है, जैसे मुगल्स के टाइम पर भी यू माइट हैव सीन दैट कि द मुगल्स वर गिविंग द लैंड टू द सम ऑफ द मनसब्स, एंड mansab was the rank, and then mansabdars were collecting the revenue and also maintaining the army, and whenever king required then they were sending the army also. Same way यहाँ पर है Amara Nayakas. This was the system, major political innovation of the Vijayanagar empire. It is just like many features of it related with the इक्ता सिस्टम. जो अकबर के टाइम पर इक्ता सिस्टम था ना, कि इक्ता से वो डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने मिनिस्टर्स को, फिर वो इक्ता से वो कलेक्ट करके रेवेन्यूज़ फिर वो दिया करते थे. दिल्ली सुल्तानेट के टाइम पर भी इक्ता सिस्टम था, और मुग़ल एम्पायर के टाइम पर था मनसबदारी सिस्टम. सो अमारा नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज. ये अमारा नायकास होते थे वो मिलिट्री कमांडर्स. दोज वर गिवन टेरिटरीज, उनको कुछ टेरिटरीज दे दी जाती थी टू गवर्न बाय द रायास. रायास मतलब राजा उनको कुछ टेरिटरीज दे देते थे जिसके ऊपर उनको टेक केयर करनी होती थी और मेंटेन करना होता था, गवर्न करना होता था. एंड दे हैव टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड अदर ड्यूज़ फ्रॉम द पीजेंट्स. और उनका काम क्या था? दे हैव टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड अदर ड्यूज़ फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स. जो भी उस एरिया के पीजेंट थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनसे वो सारे ड्यूज़ कलेक्ट करना. एंड दे रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज़. उस रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उसमें से सम पार्ट दे वर यूजिंग फॉर देयर पर्सनल expenditure and for maintaining a stipulated contingents of the horses and elephants. Stipulated contingent means that कि how something has to, stipulated means that how something must be or must be done, and contingents group of people from some countries. ठीक है. सो इनका काम क्या था? those who have come to India to attend some we can say that events. ठीक है. सो अमारा नायकास वर यूजिंग दैट मनी फॉर पर्सनल यूज़ आल्सो. दैन दे वर मेंटेनिंग दीज हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स आल्सो. एंड ये कॉन्टिजेंट्स ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स मतलब ये लोग जो बाहर की कंट्री से आते थे, इनको हॉर्सेस और एलिफेंट्स बेचने के लिए भी, और साथ में यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट्स को अटेंड करने के लिए. सो उनकी देखभाल करना भी द वर्क ऑफ दिस अमारा नायकास ओनली वॉज देयर. These contingents provided the Vijayanagar kings with an effective fighting force with which they brought the entire southern peninsula under their control. और ये जो contingents थे ये ऐसी
फोर्स प्रोवाइड करते थे, जो ये हॉर्सेस और एलिफेंट्स ऐसे प्रोवाइड करते थे इनको कि जो इतने ज़्यादा अच्छे होते थे, जो इतने ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स में प्रिपेयर्ड होते थे कि दैट हेल्प दिस विजयनगर एम्पायर टू फ्लोरिश। और पेनिनसुला तक अपना कंट्रोल उसमें करने के लिए, साउदर्न पेनिनसुला तक कंट्रोल करने के लिए उनको हेल्प किया इसने। एंड सम ऑफ द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स एंड फॉर द पीजेंट्स फॉर द इरीगेशन वर्क आल्सो। सो अमारा नायका सेंट ट्रिब्यूट्स टू द किंग आल्सो। राजा को भी वो ट्रिब्यूट भेजा करते थे एनुअली, हर साल कुछ अमाउंट नहीं, काफ़ी सारा अमाउंट होता था जो हर साल उनको देते थे। एंड पर्सनली अपीयर इन द रॉयल कोर्ट, और खुद जाया करते थे रॉयल कोर्ट में विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, उनको दिखाने के लिए कि हम आपके वफादार हैं, हम आपके लिए लॉयल हैं। एंड किंग्स ओकेशनली असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन राजा फिर भी इन सारी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता था, उसको फिर भी ओकेशनली कुछ टाइम के बाद वो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता रहता था, ताकि एक जगह पर ही रहकर वो कहीं अपनी मिलिट्री फोर्स को इतना स्ट्रांग ना बना ले कि पलट के राजा के ऊपर ही अटैक कर दे। इसलिए ये जो किंग्स हुआ करते थे रायाज, वो इनको प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम देन during the course of time in 17th century many of these नायकास established independent। फिर भी ये जो नायकास थे इन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स को इतना ज़्यादा कंट्रोल अपने में कर लिया कि दे established their independent kingdoms and they started ruling over them as the rulers, as a rayas, and this hastened the collapse of the central imperial structure। और इसने कहते इसकी वजह से जो सेंट्रल इम्पीरियल स्ट्रक्चर था विजयनगर का, उसको बर्बाद होने से, उसके विनाश होने को कोई भी नहीं रोक पाया। ठीक है। टू बी क्विक टू डू, हेस्टन का मतलब होता है क्विक टू डू, मतलब हेस्टन का मतलब है टू बी क्विक टू डू। सो इट मीन्स दैट कि दिस हेस्टन द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल इम्पीरियल स्ट्रक्चर, मतलब इतनी जल्दी से इसने हेल्प किया उस सेंट्रल इम्पीरियल स्ट्रक्चर को करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, या फिर उसको कोलैप्स करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, till today we are going to study till here only. So tomorrow we will start with another topic. Till then, goodbye.